Very good morning to all of you students. Today we are going to do chemical equilibrium. Okay. Uh, Now, whenever we talk about equilibrium, what comes to your mind? Something which is in balance or not? Tell me, beta. Right? And we are going to study this equilibrium with respect to. First, we'll study what is equilibrium. Sure. Oh, look, beta. Are these two people at equilibrium or not? Tell me. Hello. Yes. Yeah. Aja, beta. Equilibrium. We have just started. Jaldi aa. बैठ जा. So what is equilibrium? It is a state in which in it is equilibrium is a state in which opposing forces or influences are balanced. They are what? Balanced. Now we are going to study how many types of equilibrium are there: mechanical, thermal, and chemical. Mechanical equilibrium में क्या constant रहेगा बेटा? Pressure and volume remains constant. Thermal equilibrium में thermal means temperature, so temperature will remain constant. And in chemical equilibrium, what will remain constant? Beta, concentration will remain. Then we have to study in this chapter, beta, physical equilibrium and chemical equilibrium we are going to study. So in chemical equilibrium, beta, what will happen in reaction? And this equilibrium is applicable only if the reaction is reversible. Equilibrium will be applicable only if reaction is what? Reversible. Then only it is applicable. Reversible. Now reversible reaction ऐसा होता है ना बेटा. So in reversible reaction, rate of forward reaction and rate of reverse reaction should be what? It will be same. Yeah. So when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, then we call it as what beta? Equilibrium. So first of all, we study what is reaction. Chemical reaction में क्या था? Reactant gives product or not? Tell me. Okay. Now we are going to study different types of reactions. Okay. So the process in which the reactant gets converted into the product and product cannot get converted back into the reactant is known as what? Chemical reaction. So now HCl anyway, देख बेटा क्या देगा? NaCl and H2 or not? Now we are going to study types of reaction. First of all, let us start with reaction. Homogeneous का मतलब क्या होता है? हाँ, तो मतलब physical state of reactant and product will be same. Physical state of reactant and product will be, that is what बेटा? Homogeneous. अब बेटा मैं और heterogeneous में क्या होगा बोलो बेटा? हाँ, तो physical state reactant और product का क्या होगा? Different होगा बेटा. Exothermic में what will happen बेटा? Heat is given out. And endothermic में क्या होगा? Heat is absorbed. Okay बेटा. चलो बेटा अभी homogeneous reaction. I want you to look into this reaction. चलो बेटा. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इट इज गिविंग यू व्हाट बेटा? मोर. आओ जाने दो. क्या अटक गया? ओ माय गॉड. चलो बेटा आ जाते हैं. अरे जाना भाई, अभी जाने. हाँ ये ले बेटा, ये दिख रहा है अभी. हेलो. ना. अरे now I want to see this reaction all of you. Hello. What is the physical state of reactant and product? देखो ये भी गैस में, ये भी किस में बोलो बेटा? गैस. और ये भी किस में? गैस. सब सेम में होगा तो क्या होगा बोलो बेटा? होमोजीनियस. दिखाई दे रहा है? यस. ओके चलो बेटा अभी यहाँ पे आ जाते. कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है, सॉलिड है. हीट करने पे क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड. दिस इज व्हाट बेटा? गैस. तो बेटा सबका फिजिकल स्टेट सेम है क्या? तो क्या हो जाएगा? हेटेरोजीनियस. अगर HCl फॉर्म हो रहा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड है या फिर हाइड्रोक्लोरिक दे विल गिव ऐसा नीचे स्टेट देंगे ना बेटा. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या था? रिएक्शन इन विद द हीट इज, बोलो बेटा. हाँ, तो एक्सोथर्मिक में हम लोग हीट हमेशा ऐसा प्लस हीट लिखते हैं, या तो अगर डेल्टा एच फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा एच क्या हो जाएगा बोलो बेटा? नेगेटिव. अभी इसमें अब बोलोगे सर ये डेल्टा एच नेगेटिव की हो जाएगा बेटा. अच्छा सुनो, एक्सोथर्मिक मतलब हीट है. डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. तो सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट का हीट कितना था? 100 था. रिएक्टेंट का कितना है बोलो बेटा? 80. मैंने लूज किया ना. तो व्हाट आई विल गेट बेटा? तान्या बेटा, if I want to find delta H, it will be what?
heat of product minus heat of reactant. So what answer I'll get? Negative I'll get or not? Tell me. So if it is given, if I want to write in terms of delta H, then it will be what? Negative. It will be what? Negative. In terms of delta H, it will be what beta? Negative. अभी यहां पर आ जाओ बेटा. डेल्टा एच क्या हो जाएगा तुम्हारा? नेगेटिव. वापस बापर ना ले जाओ. इजी. चलो अभी एंडोथर्मिक में क्या होगा बोलो बेटा? रिएक्शन इन विद द एंडो मींस हीट इज एब्सॉर्ब. हीट इज एब्सॉर्ब. ये रिएक्शन देखो N2 + O2 क्या दे रहा है आप लोगों को बेटा? हीट मैंने सप्लाई किया ना. और क्या मिलेगा बोलो बेटा? NO. लेकिन इफ आई वांट टू राइट दिस इन फॉर्म ऑफ डेल्टा एच, देन व्हाट विल हैपन? टेल मी. डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या था बोलो कौशल बेटा? हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट. अभी सपोज इसका हीट कितना था? 80 था. मैंने बाहर से इसको और कितना सप्लाई किया? हीट किया ना बाहर से. सप्लाई को कितना किया? 20. तो 80 + 20 मिलके कितना हो गया? तो प्रोडक्ट का कितना है बोल बेटा? ये प्रोडक्ट है ना. हाँ. रिएक्टेंट का कितना था? हाँ ये वाला देख. ये तो मैंने सप्लाई किया, इसको मत देख. तो तेरे को आंसर क्या आएगा? +20 आएगा कि नहीं? तो कभी भी एंडोथर्मिक होगा रिएक्शन तो डेल्टा एच विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. डेल्टा एच विल बी ऑलवेज. ठीक है बेटा. अच्छा अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या था बोलो? ये डिस्टिंग्विश. हीट इज बोलो इवॉल्व. यहाँ पे क्या होगा? हीट इज. वेरी गुड. अच्छा प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल. क्यों बेटा? मेरा एनर्जी कितना था? मेरा रिएक्टर था 100 था. मुझे स्टेबल बनने का है ना. तो एनर्जी किसका एनर्जी कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं बोलो बेटा? तो रिएक्टेंट का एनर्जी कम हो जाएगा ना बेटा. सॉरी प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो जाएगा. आई वाज 100, आई फॉर्म व्हाट? 80. लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी. ओके. ए इट इज अ स्लो रिएक्शन. इट इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर. ए अगर आपको आपके बॉडी में से हीट लूज करना है तो आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो. अगर आप लूज करोगे तभी तो रिएक्शन क्या होगा बोलो बेटा? एक्सो. सो एनी ऑलवेज रिमेंबर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर. इट इज फेवर्ड एट. ऐसा मैं लिख दूंगा. चलो बेटा. ए एंडोथर्मिक में बेटा अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन कब होगा? जब मैं आपको बाहर से हीट करूंगा तब ना बेटा. अगर मेरे को हीट करोगे ही नहीं तो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा क्या? तो किसका एनर्जी ये इसमें एंडोथर्मिक में किसका एनर्जी? मैं रिएक्टेंट था कि नहीं? तो मेरा एनर्जी कितना था? 80. आपने मुझे 20 सप्लाई किया तब जाके मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा कि नहीं? तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बोलो? रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल. रिएक्टेंट को आप हीट करोगे तभी वो प्रोडक्ट बनेगा. खुद से बनेगा क्या? तो हीट इज एब्सॉर्ब. हु इज मोर स्टेबल? रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल एंड प्रोडक्ट आर लेस स्टेबल. क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी बढ़ जाता है कि नहीं? इट इज अ फास्ट प्रोसेस. मैं हीट करूंगा तो तुरंत रिएक्शन होगा. ए अगर आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन करना है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कब फेवर करोगे? आपका रिएक्शन कब होगा? जब मैं आपको बाहर से हीट करूंगा कि नहीं? सो इट इज फेवर्ड एट व्हाट? लो टेम्परेचर और हाई. हाई. क्लियर है? ओके. राइट. एक्सो एंडो समझ में आ गया? क्लियर है? चलो. क्या हो गया? मिल गई ब्रो? क्या क्या था अंदर? मेरा सब पास ये रिएक्शन अभी जाने तो. रिएक्शन आपको करने की जरूरत नहीं है. अच्छा ये सारे रिएक्शन देखो आप लोग. नाउ वी आर गोइंग टू डू. हम लोग ने क्या क्या किया? होमोजीनियस हेट्रोजीनियस किया. एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक किया. अब हम लोग क्या करने वाले हैं? ये रिएक्शन में सबका एरो देखो बेटा. एरो कैसा है? रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? हाँ. सो दिस इज विच रिएक्शन बेटा? इरिवर्सिबल. सो रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, दैट्स इट. देन इट बिकम्स व्हाट बेटा? इरिवर्सिबल. Reaction take place only in which direction? Forward direction. Only in which direction? Clear? Bye bye. In irreversible reactant are directly getting converted into product. अरे हाँ भाई ये चाय में भूल जाओ. It is denoted by which arrow बोलो? Single arrow. It is a fast reaction. What is reversible reaction? ये यहाँ पे देखो बेटा. ये सारे रिएक्शन में देखो यहाँ पे क्या है आपका बीच में? एरो कैसा दिख रहा है तुमको? ये बीच वाला इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. तो रिवर्सिबल में क्या होगा? रिएक्टेंट विल गिव प्रोडक्ट. प्रोडक्ट विल गिव यू रिएक्टेंट. रिएक्टेंट विल गिव यू प्रोडक्ट.
Product will give you reactant. So there is a vessel in which there is a reversible reaction is taking place. If I put my hand and if I pick little sample of it, तो मुझे सिर्फ reactant मिलेगा या product मिलेगा और I'll get both. दोनों मिलेगा. The reaction will take place in both forward and backward reaction is known as which reaction? Reversible reaction. Reversible reaction में reactants can be converted into product and products are converted back into. तो अभी लोचा है बेटा. अभी हम लोग को सब बट अभी यू हैव स्टडीड इन योर लोअर स्टैंडर्ड, पता है 10th में प्रिपरेशन हेबर्स प्रोसेस का प्रिपरेशन आप करते थे. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वी माइट हैव स्टडीड इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर यूज करते थे, ऑप्टिमम प्रेशर, वाई. वो हम लोग क्यों ऐसा करते थे? अच्छा मुझे बता, मैं जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, फाइनली हम लोग कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हमको चाहिए क्या? बोलो तानिया बेटा, क्या चाहिए रहता है? वी वांट प्रोडक्ट. तो मैं क्या करूंगा अगर एक ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन है, आई डू बाहर से कीड़ा, ऐसा मैं उसको कीड़ा करूंगा कि ताकि मेरा रिएक्शन सिर्फ कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए? फॉरवर्ड. तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर क्या रिएक्शन को, रिवर्सिबल रिएक्शन को, इफ आई वांट टू टेक इट ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाट ऑल कीड़ा आई विल हैव टू डू? दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. तो वी आइदर इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वी यूज ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम प्रेशर. याद आ रहा है ऐसा कुछ किया था? वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यार. वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. So all types of reactant remains the same, देखा, even after the infinite time. So reactant are not exhausted completely and now in either the product. Clear? अब एग्जाम में आपको ये पूछेगा बेटा कैसा एरो होता है? डबल. अभी आपको ये डिस्टिंग्विश, इट इज अ स्लो प्रोसेस है रिवर्सिबल रिएक्शन. अभी आपको ये डिस्टिंग्विश आएगा रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल में प्रोडक्ट कैन रिएक्ट टू गिव यू रिएक्टेंट ओरिजिनल. कंप्लीट कन्वर्जन पॉसिबल होगा क्या रिवर्सिबल में? नहीं. अरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट. प्रोडक्ट आर लेस स्टेबल. तभी तो बेटा रिएक्टेंट प्रोडक्ट देता, फिर प्रोडक्ट वापस क्या देता था? रिएक्टेंट. इट इज अ स्लो प्रोसेस. इट इज अ स्लो प्रोसेस. इट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन. इट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन. क्लियर है? खा ले बेटा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉ ऑफ मास एक्शन इज दिस, वी हैव नॉट स्टडीड. दैट आई विल टीच यू सेपरेटली व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन. इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता था? बोलो. प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? फॉर्म हो जाएगा, फिर वापस वो रिएक्टेंट देगा क्या? नो. यहां पे क्या हो सकता है? कंप्लीट कन्वर्जन. रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? बोलो बेटा. प्रोडक्ट आर मोर. प्रोडक्ट स्टेबल था ना, इसलिए वापस उसने रिएक्टेंट बनाया. इट इज अ फास्ट प्रोसेस. इट प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन. अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन इज नॉट अप्लीकेबल. व्हाट इज दिस लॉ ऑफ मास एक्शन? आई विल एक्सप्लेन यू. अभी नहीं, रुक जाओ थोड़ा. रिवर्सिबल का कैसा एरो था? बोलो बेटा डबल एरो. और इरिवर्सिबल का कैसा रहेगा? बोलो सिंगल एरो. What happened, Tanya, beta? Not well. Even I'm not well today. Okay. चलो बेटा इक्विलिब्रियम. बेटा अभी इक्विलिब्रियम पढ़ना है बेटा. वो लॉ ऑफ मास एक्शन आएगा बेटा. अभी हम लोग को इक्विलिब्रियम पढ़ना. कितने टाइप का इक्विलिब्रियम है? फिजिकल एंड. So first we'll study physical equilibrium. Physical equilibrium कहाँ है बेटा? देखो टैन टैन. मैंने एक कंटेनर लिया बेटा, ये देखो. इसके अंदर मैंने पानी लिया और मैंने ढक्कन ओपन रखा है. क्या क्या है? सपोज बेटा इसके अंदर मैंने पानी ले लिया और ऐसा रखा है, तो कौन सा प्रोसेस होगा? नॉर्मल. यहाँ पर पानी क्या होता है? इवापरेट होता है कि नहीं? बोलो ना. तो क्या होगा? बोल बेटा इवा. ये देख इवापरेशन होगा बेटा. वोलेटाइल लिक्विड होगा तो इवापरेट होगा कि नहीं? बोलो बेटा पानी इवापरेट होगा. राइट ना बेटा? ये देख that even thus even the liquid will have tendency to escape. और देखिए ऊपर जाएगा. ये देखिए पानी था बेटा, तो क्या बनेगा? झंडू बाम. देखना ये ऊपर जाएगा बेटा. ये देख रहा है? Yes. इवापरेट होता है कि नहीं? हाँ. ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं? इवापरेशन. क्लियर है? राइट. एस्केप इनटू द वेपर स्टेट. अब बेटा मैंने क्या किया? ढक्कन लगा दिया इसके पे. क्या लगा दिया? क्लोज कंटेनर. क्लोज कर दिया तो बेटा पानी इवापरेट हो रहा था, लेकिन अभी मैंने आई हैव क्लोज्ड इट, तो पानी क्या होगा? कंडेंस होगा कि नहीं? बोलो. अब इसको मैंने देखो ऐसा ढक्कन लगा दिया. देखो बेटा ढक्कन आ रहा है ऊपर से. देखो ढक्कन आया. लिसन बेबी. दो बार जोई तो थोड़ू तो जोई ले यहाँ. ये देखा ऐसा ढक्कन. पानी इवापरेट होना चाहता था कौशल बेटा. पानी क्या होना चाहता था? इवापरेट. लेकिन मैंने ऊपर ढक्कन लगा दिया है, तो इवापरेट होकर ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगा कि नहीं? बोलो. उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. वेपर कंडेंस. घर पे गर्म पानी करने का ऊपर ढक्कन लगाओ तो आपको पता चलेगा पानी इवापरेट होगा, फिर वापस वो ढक्कन के ऊपर वो कंडेंस हो जाएगा.
तो कंडेंसेशन होगा बेटा। नाउ टन टन, ये देख बेटा, ये इवापरेट हो गया। इवापरेशन के बाद बेटा अगर मैंने उस पर ढक्कन लिया, ये इवापरेशन था, बाद में धीरे धीरे क्या होगा बोलो बेटा, भर जाएगा, जितना जगह था, जितना मॉलिक्यूल्स जाना चाहिए था उतना चला गया। अब अभी क्या हो जाएगा बेटा, थोड़े टाइम के बाद अगर मैं उसको ढक्कन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वो इवापरेशन हो रहा था वापिस, वो क्या हो जाएगा, देख देख देख, ये देख, ये ऊपर से वापिस कहां पर आ जाएगा, ये देख बेटा नीचे आ जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं बोलो, कंडेंसेशन। क्या कहेंगे, हाँ वेपर प्रेशर। हाँ अब बेटा ये देख, धीरे धीरे देख वो वापस पानी में आ रहा है, देख रहा है कि नहीं, अरे बोलो ना। तो बेटा एक ऐसा टाइम है, ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, कंडेंसेशन। एक वक्त के बाद क्या होगा, रेट ऑफ इवापरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाएगा, से क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज इन इक्विलिब्रियम। इट इज इन व्हाट बेटा, इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा। रेट ऑफ इवापरेशन एट कंडेंसेशन, अभी थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे, ये दोनों का इवापरेशन और कंडेंसेशन दोनों सेम हो रहा है। तो स्टेट वेयर द रेट ऑफ इवापरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इज नोन एज व्हाट, इक्विलिब्रियम इज नोन एज। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लिक्विड इज इन, ये जो बेटा इसके अंदर का लिक्विड था ऊपर वेपर था, दे आर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ, तानिया बेटा ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ये लिक्विड था, कौशल ये लिक्विड था, और ऊपर क्या है, गैस। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम हुआ कि नहीं, इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड गैस। क्लियर है। अच्छा बेटा आपको पता है एक सब्लिमेटरी सब्सटेंस होता है, हम लोग को वॉशरूम में यूज करते हैं, नेफ्थलीन बॉल, कैम्फर जो पूजा में यूज करते हैं, कपूर बोलते हैं ना उसको, कापूर वॉटेवर, नेफ्थलीन बॉल देखा है, उसको अगर ऐसा रखोगे तो वो लिक्विड में जाता है क्या, नहीं, डायरेक्टली क्या बन जाता है, गैस। तो उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेटरी सब्सटेंस। क्या कहते हैं, हाँ। तो बेटा इफ आई टेक ए, मैंने इसके अंदर बेटा ये मेरा कंटेनर है, ले भाई, इसके अंदर मैंने ना क्या डाल दिया, नेफ्थलीन। ढक्कन अगर खुला रखूंगा तो क्या होगा, वो सब्लिमेट होगा, लेकिन ढक्कन बंद कर दूंगा तो क्या होगा, वेपर बनेगा। फिर वापस अगर ढक्कन बंद है तो बाहर जाने के लिए जगह है क्या, नहीं, तो वो वापस वेपर कंडेंस हो जाएगा कि नहीं। तो हियर इक्विलिब्रियम, देन व्हाट विल हैपन, रेट ऑफ सब्लिमेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ सब्लिमेशन एंड रेट ऑफ दोनों सेम हो जाएगा। तो उस वक्त पे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। लेकिन ये इक्विलिब्रियम किसके बीच में हुआ बोल, अरे नेप्थलीन कौन से स्टेट में था, सॉलिड, और वो क्या था, वेपर। तो इट इज इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड गैस, हाँ गैस बेसिक। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम है कि नहीं। अच्छा इंस्टेड ऑफ कैम्फर आई कैन टेक आउट बेटा आयोडीन भी ले सकता, आयोडीन इज ऑल्सो सब्लिमेटरी सब्सटेंस और नॉट, टेल मी। ओके तो ये हम लोग ने, अरे यार इक्विलिब्रियम किया, क्या किया, इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड, अरे कहाँ गया, इतने लोग सब ऑनलाइन आ रहे हैं बेटा, क्या मैं बोलूं। देयर इज अ फंक्शन यू नो एट, no, at like at my in my family, my niece Arangit. Sir, I will come offline next day. हाँ Arangit, What function? Arangitram. Tomorrow it is there. Oh, yeah, what? South Indian it is? हाँ Oh. Arangitram is there. Masters. हाँ पूरा, हाँ तो वो बहुत है। But sir, you तो are not South it Indian. is going to go for 2 days. तो मतलब it will start. Oh, नहीं नहीं सैटरडे छुट्टी नहीं, मैं आई ट्राई टू टेक ऑनलाइन सैटरडे प्लीज, मैं ट्राई। Saturday holiday. नहीं नहीं बेटा अभी मैं देखता हूँ, मैं दैट आई पुट अप बिकॉज दैट फंक्शन इज गोइंग टू गिव टिल लेट नाइट। Okay, sir. Sir, हाँ but you are लास्ट not अटेम्प्ट South तो जस्ट का Indian. एग्जाम था ना, इसके लिए दिया था। अरे sir, you are not South Indian. अरे बट, अरे तो साउथ इंडियन है तो भाई साउथ इंडियन नहीं है मतलब क्या, बच्चे लोग भरतनाट्यम नहीं सीखेंगे क्या मेरे। नहीं सीख सकता है, सीख हाँ, तो फिर सकता है। सीखो हाँ, सीखो, अच्छी बात है। तो आई मेक मतलब यू नो एंड मतलब बहुत सारे पूरे ऑल रिलेटिव्स आर कमिंग फ्रॉम द फैमिली और मतलब फ्रॉम प्ले नेटिव प्लेस सर ऑल्सो। सैटरडे आई वोंट बी एबल टू वाह। कम। हाँ तो सैटरडे यार भाई मैं खुद ऐसे पहले बता रहा सर हूँ। मैं ऑनलाइन भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ 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 बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं भी शायद ले पाऊंगा कि नहीं वो मैं आपको रात को, कल रात को मैं कितने बजे मेरा फंक्शन खत्म होगा तब मैं अपडेट दूंगा बेटा प्लीज। सर आप मत लो, आप पार्टी करो सर। पार्टी नहीं बेटा, अभी सब वो सब है, थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा मुझे, मैं बता दूंगा ना आपको, डोंट वरी। नाउ व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू, या लेट्स से आरेंगे इतने, ये कौन सा फिजिकल इक्विलिब्रियम बताया मैंने तुम, फिर कौन सा बताया बोलो, लिक्विड और गैस का बताया, सॉलिड और गैस का,
ठीक है बेटा। अच्छा, तान्या बेटा, इफ आई टेक नमक को पानी में डाला, डिजोल्व किया, तो एक पर्टिकुलर स्टेट के बाद में दोनों के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम आएगा। तो दैट विल बी इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट बेटा, सॉलिड एंड लिक्विड। तो मैं तुमको भी बता देता हूं ये सब कहाँ पर है। बोले सो वेर इज ऑल दिस थिंग, लुक हियर, इट इज हियर इन योर टेक्स्ट बुक बेटा। वी हैव टुडे स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 12. What is the name of the chapter? Chemical equilibrium. So, hey, we did all this, देखा, रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाई दे रहा है बेटा। देन वी डिड, देखा, ये देखिए ऐसा इक्विलिब्रियम होता है इसका, रिवर्सिबल। ये कौन सा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ऐसा ये सब मैंने आपको बता दिया बेटा, ये देखना, ये ऐसा सब है। देन बेटा मैंने कौन सा क्या पढ़ा है आप लोगों को, बोलो बेटा। ये देख रहे, रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा दो रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड एंड बैक। फिर हम लोग ने बेटा क्या पढ़ा था, ये रिएक्शन में ये वाला कौन सा था, बोलो बेटा। ए बेबी, ये क्या था, सॉलिड, सॉलिड और गैस, तो हेटेरोजीनियस था। क्या था, हेटर। ओके, फिर ये देखिए इक्विलिब्रियम आज मैंने बताया। सबसे पहला देख मैंने पानी लिया था, ठीक है, ऊपर ढक्कन नहीं लगाएगा तो खाली वेपर जगह भी ढक्कन, ढक्कन लगा दिया तो पानी से क्या बनेगा, वेपर। फिर वेपर से वापस क्या बनेगा, पानी। रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो उस पर हम लोग को क्या कहते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में था, बोलो, लिक्विड एंड गैस। इसको कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। विच इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिर बेटा हम लोग ने सॉलिड और लिक्विड का भी बताया था कि, सॉलिड और वेपर का बताया कि नहीं, बोलो। सॉलिड और वेपर का ये देखना बेटा, आयोडीन का वेपर बनेगा, सब्लिमेटरी, फिर वापस वो कंडेंस होगा। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन किस किस, सब्लिमेशन में आयोडीन वाज अर्लियर इन सॉलिड स्टेट, देन इट इज गैस और नॉट। फिर कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेटरी होता है ना, तो सॉलिड और गैस के बीच में तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं, बोलो। इट इज विच इक्विलिब्रियम, फिजिकल। कौन सा इक्विलिब्रियम है, हम्म। अच्छा बेटा, शक्कर को या नमक को पानी में डाला तो एक टाइम पे क्या होता है बेटा, हाँ, दोनों के बीच में, लिक्विड और सॉलिड के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये कौन से इक्विलिब्रियम हो गए, बोलो बेटा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। अभी हम लोग को इक्विलिब्रियम किस में पढ़ने का है, बट इन केमिस्ट्री हम लोग को फिजिकल में इंटरेस्ट नहीं है, हमको किस में इंटरेस्ट है, बोलो बेटा, केमिकल। तो केमिकल मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू व्हाट, केमिकल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू व्हाट, केमिकल रिएक्शन। देखना, कुछ है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है इसको, मस्त लिख रही है एकदम, और ऐसा स्मार्ट है। या वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। अभी देख, यहाँ पर देखो बेटा, ए कौशल बेटा, यहाँ पे देख, ये केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, रिएक्शन कैसा दिख रहा है तेरे को, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। तो इसमें क्या होगा, पहला रिएक्टेंट प्रोडक्ट देगा, देन प्रोडक्ट विल गिव यू व्हाट, रिएक्टेंट। सो एट एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा कि जिस रफ्तार से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन होगा, वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम, सो रिवर्सिबल एंड फॉरवर्ड बोथ रिएक्शन टेक प्लेस। देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन मैंने ऐसा लिखा, ओके, फिर रिवर्स रिएक्शन उल्टा लिखूंगा कि नहीं। अब बेटा इक्विलिब्रियम के वक्त पे क्या होगा बेटा, ये देखो, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ग्राफ। ओके बेटा, अभी यहां पर देख क्या होगा, पहले ये तेरा कौन सा रिएक्शन है, बोल बेटा। पहले स्टार्टिंग में मैंने क्या लिया था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया था कि नहीं, अरे बोलो ना। नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन होता है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन कम होने लगेगा कि नहीं। ये मेरा कौन सा रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या है, अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में मैंने क्या लिया था, स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिया था बेटा, ठीक है ना। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है तो मुझे क्या मिलेगा, बोलो। तो सपोज बेटा ये मैंने 100 लिया था, तो ये धीरे धीरे कम होगा कि नहीं, अरे धीरे धीरे ये कम होगा कि नहीं। लेटर से ये 50 हो गया। और ये स्टार्टिंग में अमोनिया कितना था, बोल तानिया बेटा, स्टार्टिंग में अमोनिया कितना था, 0 ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए, मेरा 0 था यहाँ, बैकवर्ड रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा, बोल बेटा, धीरे धीरे ये, हाँ देखना बेटा, हाँ 0 से, हाँ, फिर ये पॉइंट पे दोनों जन का क्या होगा, बोलो बेटा, इक्विलिब्रियम। उसको क्या कहेंगे, अर्लियर बेटा, लुक देख, अर्लियर मैंने क्या लिया था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। पहले आई एम कंसिडरिंग ओनली विच रिएक्शन, फॉरवर्ड। तो मैक्सिमम था, धीरे धीरे रिएक्शन होगा तो क्या, अच्छा, अर्लियर अमोनिया कितना था, बोलो, बिफोर स्टार्टिंग रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं ना, 0 रहेगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारा। अभी जो बेटा धीरे धीरे बेटा रिएक्शन होगा तो क्या होगा तुम्हारा, बोलो बेटा, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जा रहा है तो क्या होगा, बोलो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कम होगा और अमोनिया बढ़ेगा ना। तो देखिए, देख धीरे धीरे, देखिए देख ऐसा, देख नाइट्रोजन हाइड्रोजन कम हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन। और अमोनिया तेरा क्या होगा, बोलो, बैकवर्ड रिएक्शन करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, देख बेटा यहाँ पर, ये देख अमोनिया धीरे धीरे बढ़ेगा ना बेटा, जैसे जैसे टाइम में। क्लियर है। अभी दोनों एक एक्सटेंड करेंगे बेटा, द रिएक्शन प्रोसीड टिल व्हाट, इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं,
इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ दोनों क्या होगा से। अच्छा, अभी बच्चों के दिमाग में इन्हें बहुत मिसकंसेप्शन है क्या, कि इक्विलिब्रियम के वक्त दोनों 50-50 होता है, ऐसा जरूरी। प्लीज रिमेंबर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 50-50 होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इट कैन बी 80-20, इट कैन बी एनी रेशियो, इट कैन बी एनी रेशियो। ये दिमाग में पॉइंट डाल दो, इट कैन बी एनी रेशियो। दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट, एंड इक्विलिब्रियम स्टेट बेटा क्या होता है बोलो बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है? अभी देख मैंने यहां पे क्या लिखा, इज इट नेसेसरी दैट दोनों कर्व शुड मीट एट अ मिड पॉइंट? हमेशा ऐसा जरूरी है क्या, 50-50 होता है क्या? नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तानिया बेटा, ये देख, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो, वाई? ये देख बेटा, केस वन मैंने अभी ऐसा किया, अभी आप मेरे को बता कौन सा रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, फॉरवर्ड वाला हो रहा है ज्यादा या बैकवर्ड वाला? बेटा यार ये फॉरवर्ड था। हाँ सही। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन देखिए, ये दोनों के बीच में हो रहा है क्या? नहीं ना। तो ये तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड था तेरा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है बेटा यहाँ। ये तेरा फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड ज्यादा हो रहा है कि नहीं बोलो बेटा, और ये तेरा बैकवर्ड था। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम 50-50 पे हो। 60%। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, समझ में आएगा नहीं। इन दिस केस फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर डोमिनेंट। क्लियर? अभी ये देख देख ग्राफ 2 हो, तो फिर वही इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा ही नहीं बेटा। जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें हमेशा इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है ना। और मैं बताता हूँ सब कंडीशन में सब बताऊंगा। अभी ये वाला रिएक्शन में कौन सा ज्यादा हो रहा है, बैकवर्ड ज्यादा हो रहा है कि नहीं? तो क्या वो मिड पॉइंट पे मीट हो रहा है क्या? तो पहला दिमाग में डाल दो, वरना आप लोगों को क्या लगता है इक्विलिब्रियम दोनों 50-50 होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। 60-40 पे भी हो सकता है, ठीक है ना बेटा, 20-80 पे भी हो सकता है। इसमें विच रिएक्शन इज मोर डोमिनेंट? बैकवर्ड। क्लियर है? अब बेटा आ जाते हैं देखिए, इसमें बैकवर्ड रिएक्शन वॉज रिवर्स रिएक्शन इज मोर डोमिनेंट। अभी अभी आ जाते। हाँ बोलो। Why is backward more dominant? क्या? Backward ज्यादा dominant क्यों होता है? हाँ, वो बाद में बताता हूँ बेटा, वो पहला कॉन्सेंट्रेशन, वो रिएक्शन पे, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन पे, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे पॉइंट। वो केसी का वैल्यू हम लोग ढूंढेंगे तब आएगा। अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम सब मैं बताता हूँ एक एक करके। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए, तो ही इक्विलिब्रियम आएगा, वरना कभी इक्विलिब्रियम आएगा। ओके। अच्छा, इक्विलिब्रियम के बाद अगर मैं हाथ डालूंगा तो मुझे दोनों मिलेगा, रिएक्टेंट भी मिलेगा और क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। सो बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। 6-7 ऐसा करते हो ना तुम लोग, 6-7 ऐसा करो, तो समझने का वी आर डूइंग इक्विलिब्रियम। ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। फिर रिएक्शन बंद हो जाएगा क्या? ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रहा है और क्या हो रहा है, बैकवर्ड, दोनों चलते ही रहने वाला है। क्लियर है? दोनों नाइदर रिएक्शंस विल स्टॉप, both the reaction proceed in opposite direction with same speed. Since the chemical reaction does not stop, then it is what, dynamic in nature. अभी बेटा ये डायनामिक क्या होता है, मैं तुमको एक सिंपल सा एकदम मस्त लॉजिक बता देता हूँ। सपोज बेटा आप लोग पता है कभी ऐसा मॉल जाते होगे तो आप लोगों ने एस्केलेटर देखा रहेगा, ऐसा जादुई सीढ़ियां होती है, ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, एस्केलेटर अभी स्टेशन पे भी होता है। अच्छा इमेजिन, डायनेमिक का मतलब क्या होता है वो मैं तुमको बता देता हूँ, सुन लेना भाई। ये भी बेटा हम लोगों ने एक एस्केलेटर है जो नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है, द वन इज कमिंग डाउन। तो उसमें क्या क्या पता है क्या, ये कौन है अपनी डॉन, श्रिया डॉन। हाँ, दवे ने क्या बोला कि आज कुछ तूफानी करते हैं, और उसने क्या सोचा कि आज जो एस्केलेटर से मैं नीचे आ रहा है ना उसमें मैं ऊपर जाऊंगी। तो उसने क्या किया, स्टार्टिंग में फास्ट दौड़ी, ठीक है ना, थोड़ा बीच में जाके उसने क्या किया, जिस स्पीड से एस्केलेटर नीचे आ रहा है उसी स्पीड से वो ऊपर चढ़ रही है। द स्पीड विथ विच द एस्केलेटर इज कमिंग डाउन, विद द सेम स्पीड शी इज ट्राइंग टू क्लाइंब, ठीक है। अच्छा, अब ये ना वहां पे ना एक बहुत बड़ा वॉल था उस वक्त पे, और मुझे ना श्रिया का खाली ना ये मुंडी दिख रहा था, हम सबको क्या दिख रहा था, उसका फेस। हमको पता ही नहीं कि वहां पे एस्केलेटर है। अच्छा बेटा, जिस स्पीड से एस्केलेटर नीचे आ रहा है उसी स्पीड से वो ऊपर भी जा रही है, तो मतलब एस्केलेटर भी चल रहा है, ये भी चल रही है, लेकिन हमको खाली इसका ये अपर पार्ट दिख रहा है, मुंडी दिख रहा है, वी आर ओनली सीइंग द फेस। तो हमको क्या लगेगा, उसका नेट मूवमेंट कुछ होने वाला है क्या?
अरे बाबा उसका नेट मूवमेंट वो चल रही है, एस्केलेटर भी चल रहा है, लेकिन मुझे तो खाली ऐसा ऊपर का पार्ट दिख रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि सम पर्सन इज स्टैंडिंग देयर, श्रेया इज जस्ट स्टैंडिंग देयर, बट शी इज ऑल्सो मूविंग, एस्केलेटर इज ऑल्सो मूविंग, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों सेम हो रहा है, दोनों जब मूव हो रहा है, लेकिन हमको क्या दिख रहा है, स्टैटिक दिख रही है, हमको क्या दिख रही है, बट इज शी स्टैटिक, नो शी इज व्हाट, डायनामिक। तो इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक होता है, इट अपीयर्स टू बी व्हाट, स्टैटिक, बट इट इज डायनामिक। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड, देखो ऊपर चढ़ रही थी उसका फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था, और वो नीचे आ रही थी, एस्केलेटर नीचे आ रहा था तो बैकवर्ड, बोथ आर एट टेकिंग प्लेस एट से, इट अपीयर्स टू बी स्टैटिक बट इट इज डायनामिक। तो अभी रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आप बर्तन में ऐसा देखोगे तो आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो रहा है, ऐसा दिखाई नहीं देगा, अरे बैठेंगे वो अंदर होते रहता है। देख बेटा, दस द केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, गिव रीजन भी आ सकता है बेटा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब इक्विलिब्रियम आप बन जाता है तो जो इक्विलिब्रियम में बेटा जिस जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम बनेगा उस टाइम पे जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहते हैं, हाँ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रीच कांस्टेंट वैल्यू एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड एज व्हाट। तुरंत बेटा मैं अगर रिएक्शन स्टार्ट करूंगा तो तुरंत इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होगा, टाइम लगेगा उसको। A catalyst does not affect the equilibrium, MCQ में आएगा, which what does not affect the equilibrium, कैटलिस्ट का क्या काम होता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे कितने रिएक्शन हो रहे, दो हो रहा है, फॉरवर्ड भी हो रहा है, और तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करेगा नहीं। फिर बाद में कौन इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर देगा, ए कौशल बेटा, इक्विलिब्रियम को कौन इफेक्ट कर देगा, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब अगर मैं चेंज करूंगा तो इक्विलिब्रियम विल गेट अफेक्टेड। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे अफेक्ट होगा, वो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हाँ, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में, कहाँ पे पढ़ेंगे। अच्छा, इक्विलिब्रियम ओपन वेसल में आ सकता है क्या कभी, ओपन वेसल होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन के चला जाएगा ना बेटा, तो रिएक्शन हैज टू बी ऑलवेज बी व्हाट, क्लोज्ड। एमसीक्यू में आ सकता है, असर्शन रीजनिंग में भी आ सकता है बेटा, ठीक है। हाँ एमसीक्यू, नहीं अभी तुम लोगों को नहीं है बेटा, सॉरी, 11 12 11th में अभी नहीं है, लेकिन एज पर न्यू एनईपी देख के ना आस्क के। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क के लिए। तो अभी आप बोलोगे सर ये आपने बताया वो कहाँ है, तो ये यहाँ है, आओ ना। ये देखो इक्विलिब्रियम में हम लोग ने बता दिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, ये वेर इज द के, देख तेरे, ये देख ये सब मैंने बता दिया तुमको, ये देख, ठीक है ना, ग्राफ वगैरह सब बता दिया। हो ये देख इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट जाने तो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम बता दिया मैंने तुम लोगों को, कैरेक्टरिस्टिक किधर गया भाई, और कितना बात, अरे बेटा अभी का ये यार देखिए मेरा चार्ज ही क्यों नहीं हो रहा है यार, सब क्या प्रॉब्लम, ये यार ये बंद हो जाएगा, शे ये एक दिन, कितना बात, why it is not charging bro, फुल मार्क सर, स्विच ऑन किए कुछ ऑन है भाई सब, और आप सर दबा वरना तो यही ऑन नहीं होता है ना भाई, ऑन ऑफ करेगा नहीं हो रहा है। ओके, सर डायरेक्टली करेक्ट करके करेक्ट ये बंद हो जाएगा तो टीवी में कर देना सर, वो हाँ चलो, ए हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम वी हैव डन, ठीक है ना, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, चलो आ जाओ। अरे वापस बंद हो गया ये, पीछे तो साइन आ रहा है,
But are these formulas? सुनना भी है आ रहा है साइन, वो बंद का आ रहा है यार, शिट। podcast. Imagine. So what are you doing on that? ओके, इक्विलिब्रियम, हाँ अभी मैं पकड़ के रखता हूँ इसको, ऐसे करेंगे फिर। The tape और तो tape लगा दो ना. आई डोंट नो, बट ऐसा होना नहीं चाहिए ना, लेकिन चलो बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम बता दिया बेटा, कहाँ पे क्या कैरेक्टर। देख, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस रिएक्शन आज मैंने आपको करवा दिया, ये दिखाई दे रहा है ना बेटा। फिर कैरेक्टरिस्टिक किधर गया इक्विलिब्रियम का, ये रहा, ये देखिए, ये रहा, पेज नंबर है तुम्हारा 182। आई हैव डन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। अरे बहुत छोटा है, बहुत इजी है बेटा। अब बेटा ने इसमें भी मेन पार्ट हम लोग को करने का है, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। व्हाट यू हैव टू डू? मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। चलो बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन किधर गया? लॉ ऑफ मास एक्शन 178 पे। ओके बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है पहला सुन लो। ओए, ये देखा जाओ, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटा ये रिएक्शन लिया मैंने, देख ले बेटा, A moles of A plus B moles of B gives me what? प्रोडक्ट gives me। Product. अब बेटा रेट, कोई भी रिएक्शन का स्पीड किस पे डिपेंड करता है बेटा? मैंने अगर अच्छा, मैंने जिंक और डाइल्यूट HCl लिया और जिंक और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, किसमें रिएक्शन फास्ट होगा? हाँ, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। Yeah. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट बेटा? रिएक्टेंट। बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है वो मैं तुमको बता देता हूँ। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग ले, ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा? मोलार कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं? और इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव मास। क्या बोलते हैं इसको? मतलब ये एक्टिव एक्टिव पार्ट होता है ना रिएक्शन का, कॉन्सेंट्रेशन बेसिक। क्लियर? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये चाहिए दोनों के बीच में क्या है बोलो बेटा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मल्टीप्लीकेशन है। तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार कॉन्सेंट्रेशन और द एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मासेज ऑफ। अच्छा, इसके आगे क्या नंबर लिया था मैंने? ए। इसका कितना मोल्स था? बी। रेस टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेस टू देयर whatever moles I have taken, it will depend ना, 1 मोल लिया, 2 मोल लिया, कितना लिया, बैलेंसिंग के लिए जो नंबर लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये कैसे लिया किया मैंने? बोल बेटा, रेस टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोल बेटा, ये देख आया कि नहीं? स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए और बी का मतलब क्या है हीरो? एक्टिव मास या मोलार कॉन्सेंट्रेशन। अभी डिफाइन कैसे करेंगे बोलो बेटा? ए एंड बी आर विच कोएफिशिएंट? स्टोइकियोमेट्रिक। अरे कोई भी इक्वेशन बैलेंस करने के आगे नंबर डालते हैं हम लोग, उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। तभी इसको कैसे लिखेगा तू बता? रेट ऑफ रिएक्शन इज, प्रोपोर्शनलिटी को निकालते हैं तो हम लोग क्या डालते हैं? इक्वल टू और के डालते हैं, इक्वल टू और के। तो देखिए के आया कि नहीं? अरे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में भी पढ़ते थे तो पता है ना बेटा, इक्वल टू के डालते थे। इक्वल टू कब मैथ्स में पढ़ा है ना, प्रोपोर्शनलिटी निकालते हैं तो इक्वल टू के डालते हैं। बराबर है? ए रेस टू ए, बी रेस टू बी। तो अभी इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? लॉ ऑफ मास एक्शन को बताओ। के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बोलो बेटा? Rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active masses of the, क्या था ये? reactant, raised to their stoichiometric coefficient with each active mass term raised to the power equal to its stoichiometric coefficient in balanced chemical equation। बरोबर है? हेलो। तो चलो बेटा, अभी ये रिएक्शन मैंने लिखा है बेटा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेके बेटा, तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा बोलो बेटा? अरे जा भाई, मैं ही लिख के बताता, ये ले, लो मा, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ। अभी मेरे को ये करवाने दो बेटा, ये मेरे को करवाने दो। अभी हम लोग को क्या करने का? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ने का। किसके बारे में? देख बेटा, ये ए मोल्स था, ये बी था, ये रिएक्शन है, ये मेरा रिएक्शन हो रहा है, ये मेरा सी बन रहा था, ये मेरा डी बन रहा था। इतना समझ में आता है? इसके आगे मैंने क्या लिखा है? ए मोल्स ऑफ ए था, ये बी मोल्स था। बैलेंस करने के लिए जो नंबर डाला, कौशल बेटा इधर सी डाला, इधर डी डाला।
ये ऊपर वाला मेरा कौन सा रिएक्शन है बोलो बेटा, ये वाला कौन सा है, फॉरवर्ड। ये वाला कौन सा रिएक्शन है, और ये वाला कौन सा है बोलो, रिवर्स या बैकवर्ड भी बोल सकते हैं, बराबर है कि नहीं। तो पहले मैंने कौन सा रिएक्शन लिया, ये छिंगा लोग, फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर विच रिएक्शन, कंसीडर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड में तुम कैसे लिखोगे, फॉरवर्ड रिएक्शन में ले रहा हो, हेलो, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में तुम क्या लिखेंगे, A+B। अभी मैं खाली देख ऐसा लिख रहा हूं, देख रहा है बेटा, ये देख, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ कि नहीं बोलो बेटा, लिख भी दूं क्या इसके ऊपर, ये ले फॉरवर्ड। देख मैंने आधा एरो बनाया, दिख रहा है कि नहीं, A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B, C मोल्स ऑफ C और D मोल्स, ये रिएक्शन के लिए ये तेरे रिएक्टेंट है कि नहीं बोल बेटा, रिएक्टेंट है कि नहीं। तो लोमा क्या बोलता है, रेट ऑफ, अभी मैं कौन सा रिएक्शन लेने वाला हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड के लिए हम लोग ऐसा, यार ये बंद हो गया ना वहां पर, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, क्या यार सब दिमाग खराब हो रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, चलो आ जाओ, रेट ऑफ फॉरवर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे, आया, शिट मैन, आ गया। चलो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट बेटा, Yeah. आया, सर 5 मिनट में जाना पड़ेगा। हाँ 5 मिनट में ही हो जाएगा ये। देख रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अभी किस पे डिपेंड करता है बोलो, Yeah. हाँ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन कौन है बोल बेटा, ए और बी है, ए का पावर कितना है बोल, आ रहा है ना, ए का पावर कितना है, ए, बी का पावर कितना है, बी। अभी इसको मैं कैसे लिखूंगा, आर एफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ डालूंगा, क्या डालूंगा, हाँ के एफ, क्यू एफ डाला बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, A⁻A, B⁻B। इसको इक्वेशन 1 दे दिया, क्या दे दिया। अभी मैं क्या करूंगा, रिवर्स रिएक्शन लूंगा, पार्ट 2 क्या करेंगे बोलो, कंसिडर बोलो, रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन क्या था बोलो, हेलो, अरे बोलना, सी और डी मिलके आपको क्या दे रहा था बोलो, ए एंड बी। उल्टा लिखा के नहीं, अरे यहां पर देखना ये ऐसा उल्टा जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, सी का कितना मोल्स था बोलो, बी का, हाँ ए और बी दे रहा था। तो अभी बेटा अपने को इसको ही देखने का है। अभी रेट ऑफ कौन सा रिएक्शन हो रहा है बोलो बेटा, बोलो रिवर्स, अकॉर्डिंग टू लोमा रेट ऑफ विच रिएक्शन, रिवर्स को आर लिखते हैं हम लोग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। अभी रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, ये रिएक्टेंट हो जाएगा कि नहीं, तो C⁻C और क्या हो जाएगा, P⁻, अच्छा अभी इसको आर आर ऐसा लिखेंगे और इक्वल टू डालेंगे और के एफ के बदले क्या आएगा, के आर, C⁻C और क्या लिखेंगे बोलो, D⁻D। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 ओके। अरे बेटा ये दोनों का बेटा अभी यहाँ पे देखना, ये तेरा कौन सा रिएक्शन था, फॉरवर्ड, और ये तेरा क्या था बोलो बेटा, रिवर्स। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बोलो, दोनों सेम होगा कि नहीं, एट इक्विलिब्रियम स्टेट व्हाट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ
हाँ, रिवर्स रिएक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड की जगह पे भी मैं क्या लिखूंगा, के एफ, क्या था, ए रेस टू ए बी रेस टू बी इक्वल टू व्हाट, के आर, रिवर्स ना, सी रेस टू सी डी रेस टू डी। अभी मैं क्या करूंगा, ये के एक तरफ ले लूंगा, तो ये के आर को इधर पे गया, तो के एफ अपॉन के आर, अरे यार चल, इक्वल टू व्हाट, रेस टू सी अपॉन डी रेस टू डी अपॉन ए रेस टू ए अपॉन बी रेस टू बी। अब मेरे को तुम लोग ये बताओ, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट को मैं क्या ले सकता हूँ, न्यू कांस्टेंट के ले सकता हूँ कि नहीं, और उसको नाम क्या दे दिया हम लोग ने, के सी। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज द न्यू कांस्टेंट और नॉट। तो के सी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आंसर कैसे आया आपको बेटा, ये सी और डी क्या था, प्रोडक्ट था। स्टार्टिंग के रिएक्शन में देखो ना, सी और डी क्या था, प्रोडक्ट था, ए और बी क्या था, तो it is the ratio of the product of the products raised to their stoichiometric coefficient to the product of the molar concentration of reactant raised to their stoichiometric coefficient। तो इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे। तो इधर पे आ जाओ, ये देख बेटा, ये डेरिवेशन आता है 2 मार्क के लिए, और इसको अप्लाई कैसे करने का वो मैं तुमको अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन पहले डेरिवेशन देख लो। देख, पहला मैंने कौन सा रिएक्शन लिया, फॉरवर्ड। ये इधर जो है कौशल, ये देखिए फॉरवर्ड लिखा, दिखाई दे रहा है, ए रेस टू ए बी रेस टू बी, तो आर एफ और के एफ क्यू लिखा, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट। फिर इक्वेशन नंबर 2, क्या क्या बोलो बेटा, इक्वेशन नंबर 2, रिवर्स रिएक्शन लिया, दिखाई दे रहा है। अब रिएक्टेंट तेरा कौन हो गया, सी और डी हो गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोलो। तो रेट ऑफ रिवर्स इज डायरेक्ट सी रेस टू सी डी रेस टू डी, तो आर एफ इज इक्वल टू के आर इज इक्वल टू सी रेस टू सी डी रेस टू डी। तो दिस इज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। उसके पहले क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, दोनों जन क्या हो जाएगा, बोलो। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड हम लोग ने ढूंढ लिया। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स और नॉट, टेल मी। अभी बेटा आर एफ की जगह पे क्या डालेगा, ये वैल्यू डाल ले, ये देख बराबर है कि नहीं, आर एफ का ही आया कि नहीं, आर का क्या वैल्यू आया, दिख रहा है कि नहीं। रीअरेंज कर, दोनों को रीअरेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, देख रीअरेंज किया बेटा, दिखाई दे रहा है। अब बेटा कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट को हम लोग न्यू कांस्टेंट ले सकते हैं। इसको हम लोग ने क्या लिखा, के एफ अपॉन के आर इज इक्वल टू के सी, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। Sir, thank you. हाँ, एक डेफिनेशन देख लेना बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज व्हाट, the ratio of the product of the equilibrium concentration of the product to the product of the equilibrium concentration of reactant with each concentration of each substance raised to its what, stoichiometric। तो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेरिवेशन। तो बेटा यहां तक समझ में आ गया। Yes. अभी इसका एप्लीकेशन करने कैसे करने का, दैट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी।